Hello everyone, welcome to this webinar. I would really appreciate if some of you could switch on your video if you are comfortable. If someone is comfortable, please switch on their video. कोई ऐसे pressure नहीं है, but just to make it more like a discussion and so that you can ask your doubts और भी अच्छे से. It would be amazing if some of you could switch on your video. Also, if any of you have any doubts, we will be taking a small doubt session towards the end. Abhi initially we will be talking about CUET and we have discussed some pointers. So हम चारों अपनी CUET journey mistakes and सबके बारे में share करेंगे. And towards the end we will be taking up your doubts. Doubts आप unmute करके भी पूछ सकते हैं. You can also ask your doubts in the chat section, but towards the end. ठीक है? Also, we will not be waiting any longer. Since it is a recorded session and आगे we will be posting this on our YouTube channel which is CUET by The Study Anchor. ठीक है, तो या फिर The Study Anchor के YouTube channel पे you will find the recording. Okay, so we will just start now. So I will, since some of you don't know what CUET is also, I'm just going to tell what is CUET. It is the Common University Entrance Test. Okay, so this was introduced as a common window to a lot of universities. अभी CUET के अंडर टोटल में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से अराउंड 45 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. सो अब इसमें व्हाट द गवर्नमेंट वांटेड वाज कि कॉमन विंडो बन जाए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, सो दैट हायर एजुकेशन इज मच मोर एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, कि देखो एक फॉर्म भर के यू कैन एक्सेस एंड टारगेट सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन वन गो. ठीक है, एंड इससे पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इजी हो जाए एंड हायर एजुकेशन और एक्सेसिबल हो जाए. ऑल्सो जैसे पहले ही होता था कि यार बहुत यूनिवर्सिटीज बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को कंसिडर करती थी, लेकिन वो हटाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम आया सो दैट इफ पीपल आर नॉट एबल टू गेट इनटू देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट गो, दे कैन टेक अ ड्रॉप ईयर एंड प्रिपेयर वंस मोर. एंड ऐसा सीयूईटी के लिए हो भी रहा है that many people who are not getting their dream college or course in the first go, they are giving CUET over and over again, जैसे ये already NEET, JEE, CLAT and exams में होता था. So basically this was the whole idea behind CUET. ठीक है, अब CUET का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है. लैंग्वेजेस की टू लिस्ट होती है, यू कैन चूज 2 लैंग्वेजेस आल्सो, बट एक तो चूज करनी ही करनी होती है, जो मोस्टली लोग इंग्लिश या हिंदी ही चूज करते हैं. उसके बाद यू हैव टू चूज योर डोमेन सब्जेक्ट्स, जो 3 चूज करना इज माय सजेशन, क्योंकि मोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आर नीडेड. एंड देन देयर इज जनरल टेस्ट. अब हर कोर्स का और हर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन के डोमेन सब्जेक्ट्स, जीटी और इंग्लिश एंड द लैंग्वेजेस नीडेड, which you can check on CUET Samarth जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा CUET के आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है. लेट्स जस्ट गेट इनटू इट नाउ कि हम चारों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. And since I am the moderator as well as a speaker of this webinar, so we will go in this order that first we'll ask question from Garvit, then from Khatika, then from Vidit, and then I'm going to answer. Abhi, let's just give a brief introduction de dete hum aap sabko. So I am Navya Dang and I'm currently in second year. I am pursuing psychology honors from Kamla Nehru College, Delhi University. I gave CUET in 2022 and my score was 765 out of 800. And I scored 100 percentile in 2 subjects, psychology and sociology. Okay, now let's come to Garvit. Hello guys, I hope I'm audible. मेरा नाम गर्वित है. Currently मैं second year कर रहा हूँ अपनी bachelor's in mathematics from the Institute College. मेरा CUET score was 747 and 100 percentile was in physical education and nearly in mathematics. Hi, I'm Khatika Shah. I'm pursuing BA Honors in Sociology from Hindu College. अभी मैं अपने second year में हूँ and I gave CUET in 2022. In my CUET, my score was 790 out of 800 and I scored 100 percentile in history, political science and sociology and 99 percentile in general test. Hi, I'm Vidit Jain. I'm pursuing Bachelor's in Financial Investment Analysis from SSCBS. My CUET score was 770 out of 800, and for the combination of BBFIA, in which English, General Test, and Maths is taken into consideration, my score was 572 out of 650. I scored 100 percentile in Mathematics and Business Studies.
Okay, so now that we are done with the introduction, we'll just simply just get into it सीधा. So we'll be speaking on some pointers. So the first pointer that we all will be sharing is कि हमने CUT preparation करी कैसे थी? What was our strategy? What did we do to have a good score? ठीक है? So let's start with Garvit. हाँ, so basically मेरा starting मेरे को maths ऑनर्स ही करना था. So when I chose the criteria, it was maths, English and 2 subjects. So I'm from PCM background, so physics chemistry लेना मेरे लिए थोड़ा रह जाता कि marks कट जाएंगे. So I switched to economics and physical education. I dedicated time to maths fairly, and because 2 महीने Garvit, CUT I'm आने so वाला sorry था, to तो interrupt, but your voice is breaking थोड़ा बीच में and it is very slow. Is it possible that you can yeah, switch up am I something into? हाँ. just a second? I think Garvit, you fix this issue अभी. तब तक can we go on to Khatika? Is that fine? I think Yeah. I'll So continue till till then, start. Till then, Garvit Mariam, can fix it. हाँ, much better. sorry, just a second. Am I audible now? Yeah. Much better. Please continue. Garvit. So basically मेरे subject combination was maths, English, physical education and economics. So maths के लिए basically I did a lot of practice and sample papers. And yeah, चारों subjects was kind of okay except for English. So it went well, and I was able to get 745. All right. So for me, my subjects, mainly my domains were history, political science and sociology. मेरे पास ये तीनों subjects अपने 12th में थे. And for our batch, we had 2 boards. So the first board was MCQ based and the second was subjective. So for that, because of the MCQ based boards, I was privileged to have teachers जिन्होंने हमें बहुत सारे MCQs कराए हुए थे, like different types of a very good variety. So I could get a hang of them. But that's not necessarily true for everyone. And again, like with our batch, there was a lot of confusion कि कैसे हो रहा है CUT, like किस mode में होगा कि नहीं होगा, कितना value करेगा. There was a lot of confusions. Because of that, I did not take any coaching because बहुत सारे like unanswered questions थे. I did not know if it will be as fruitful for me because I am personally someone that I don't do very well in coaching, but that's not true for everyone. For a lot of people that I know, they enjoy the structure that coaching allows them, and it gives them a certain amount of, some goal to work upon. But for me, I looked on YouTube and Google for, MCQs. I did practice mocks, which were very helpful for me because again, like once you practice mocks, then only you know, where you're going wrong and how much you need to focus on certain areas. So that really helped for me personally. I think now we can move on. Yeah, so my main subjects were mathematics. मैंने वैसे I targeted everything. तो मतलब I targeted BCom honors and Eco honors and BBFIA from SSCBS as well. तो मैंने सारे subjects के लिए prepare किया था. One main instrumental advice जो मैं सबको दूंगा कि don't stop studying after your boards क्योंकि board से college नहीं मिलने वाला and boards में अच्छा score करके you'll just be happy about it for a day or two, but उसके बाद जब पता चलेगा इससे कॉलेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, then you'll be disappointed. तो बोर्ड्स के एकदम जस्ट बाद I would recommend these 2 months are very essential. अच्छे से पढ़ाई करनी है इन 2 महीनों में, and I ended up scoring good in all the tests that I gave in CUET. उसके बाद one main thing that I would like to point out, जैसे every subject you need to practice the MCQs, you need to practice the जो सिलेबस बोर्ड्स में नहीं आता पर CUET में आता है. काफी मेजर चंक ऑफ सिलेबस कटा हुआ होता है बोर्ड से, बट वो CUET में आता है, वो प्रिपेयर करना होगा. और उसके बाद कमिंग टू एवरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देयर इज नॉट एनीथिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक. उसके अलावा कमिंग टू लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट काफी लोग लुक अपॉन कर लेते हैं, उस पर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते. मेरे लैंग्वेज टेस्ट में काफी आई एंड अप लूजिंग मार्क्स. यू नीड टू pay attention to that particular language test as well. So as for me, since my batch had term 1 and term 2, like Khatika and Garvit, term 1 में हमारी already half syllabus के MCQs में practice हो गई थी. Because for CUET is very very important कि after giving your board exams, you need to practice all of those subjects MCQs के through also. Because MCQs ना यार बहुत tricky बनाए जा सकते हैं. And MCQ also my subjects were psychology, sociology, physical education, English and GE.
GT मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में था नहीं, लेकिन तब भी आई गेव इट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। एंड मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी, जिन लोगों ने ऑलरेडी GT चूज कर लिया है, गुड फॉर यू। लेकिन अभी जो करेक्शन विंडो आएगी, इफ यू हैव नॉट चूजन GT तो कर लो, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज भी हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। सो आई वुड रियली रिकमेंड गिविंग GT। Also, see, board exam से preparation होगी, but that is subjective preparation. So I would really recommend to practice a lot of MCQs. बुक्स लो MCQs की, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएंगी। उसके बाद CUET में कुछ ऐसा सिलेबस होता है जो आपका बोर्ड से डिडक्टेड होता है। जैसे मेरे साइकोलॉजी में 7 चैप्टर्स थे जो आए थे, पूरी बुक में 9 थे और सिर्फ 7 थे जो बोर्ड में आए थे, बाकी तो डिडक्टेड थे। तो वो खुद से करने होते हैं, ठीक है। वो आप खुद से करो, किसी कोचिंग से करो, किसी अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करके समझो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो वो डिडक्टेड सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड इज CUET में ना, जो हम NCERT में बॉक्सेस को इग्नोर करते हैं ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट मेरे सोशियोलॉजी के पेपर में तो भर रखे थे कि सारे क्वेश्चंस ही बॉक्सेस में से आए हुए थे, कोई मेन बुक से तो आया ही नहीं था। सो आई वुड रियली रिकमेंड डूइंग दैट। एंड वाइल कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करे थे, एंड देन आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड MCQs, ठीक है। सो नाउ दिस टॉपिक इज डन। The next thing we are going to talk about is the preference list। जैसे अभी आप लोगों ने CUET का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तो फिल कर दिया होगा। So once, okay, so once फॉर्म भरने के बाद, अब जब आपका CUET दे दोगे और जब आप उसके फॉर्म, एक आपका एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी कि आपको कौन सा कॉलेज एंड कोर्स चाहिए, ठीक है। अब उसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। सो वी आर गोना टॉक अबाउट हमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई थी, हमारा एडमिशन प्रोसीजर कैसे था, एंड प्रेफरेंस लिस्ट क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के बनानी होती है। एंड आई एम पुटिंग एम्फेसिस हियर बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रेफरेंस लिस्ट विच यू विल बी मेकिंग कैन मेक एंड ब्रेक यू। आपकी ड्यू की पूरी जर्नी को या तो बना सकता है या तो तोड़ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट गर्वित, प्लीज शेयर अबाउट अपने प्रेफरेंस लिस्ट एंड एडमिशन प्रोसीजर पूरा। सो थैंक यू। सो पर्सनली मैंने तो नंबर 1 पे सीफम्स रखा था, बट मैंने वो ऐसे ही नहीं रख दिया था बिकॉज सीफम्स का नाम होता है। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर अ लॉट ऑफ नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस कि किसकी प्लेसमेंट कैसी है और किसकी बेसिकली हायर स्टडीज में बच्चे कितना चाह रहे हैं। उसके लिए लाइक यू कैन नॉट लाइक डायरेक्टली ट्रस्ट अ यूट्यूबर कि वो क्या कह रहा है। आपको अलग अलग साइट्स पे जाके उनका डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और मे बी इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल मेरे टाइम पे भी जो लाइक प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में प्रोफेशनल हेल्प दे रहे थे, बट आई पर्सनली प्रेफर्ड गोइंग लाइक रिसर्चिंग ऑल ऑफ दैट ऑन माई ओन। बट लाइक इक्वली रहेगा, कुछ भी कर सकते हो। सो या I got CFMs उसी में। So but I prefer that you think a lot before putting any college at your number 1 preference because you might get it. For me personally, Hindu College Sociology Honors was my first preference. But then again, again, you should not listen to people around you. Of course, unki advice lo, ask your friends, your family members, because they might know someone, who knows how these colleges are. You can look up on, like, at least I looked up a lot on YouTube, Google, kaun se college ki ranking kaisi, what sort of facilities are there, what sort of infrastructurally how the college is, academically kaisa hai. I looked at all those things. Personally, for me, I wanted to go to North Campus because I wanted the North Campus vibe. And again, I wanted to go to a co-ed college. So that was my personal preference. So that's why I had put Hindu on my as my first preference. That's not necessarily true for everyone. Because again, with sociology, you get a very small pool of colleges to choose from. Like there are just like 10, 11 colleges. But if you're going for something more generic, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, वहाँ पे थोड़े से ज्यादा कॉलेजेस मिलते हैं. सो यू विल हैव मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. ऑल्सो व्हेन यू आर मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज मेरा स्कोर कम आया सो आई शुड नॉट पुट अ सर्टेन कॉलेज ऑन द टॉप क्योंकि मुझे मिलेगा ही नहीं. दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू. Because with my score, when I got my rank for sociology, my rank was I think 100 something, but I got my first preference. सो अगेन इफ आई वुड हैव गॉन बाय कि मेरी रैंक कितनी है उसके हिसाब से मैं जाती तो मुझे तो आई थिंक जानकी देवी मिलते हैं, समथिंग इवन लाइक समथिंग अदर देन दैट. सो नॉट डेफिनेटली नॉट हिंदू. सो प्लीज डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज मेरी रैंक कम है तो मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए. अपने जो भी बेस्ट कॉलेज है उनको सबसे ऊपर रखो. यू विल गेट व्हाट यू विल एट द एंड ऑफ द डे, एंड अगेन यू विल हैव अ चांस फॉर अ सेकंड राउंड अगर आपके ऊपर वाले कॉलेजेस नहीं फुलफिल्ड होंगे. सो दैट्स वन थिंग टू कीप इन माइंड. Coming to the preference list, my sole criteria was the placements of the colleges. तो मैंने उस basis पे अपनी preference list बनाई थी.
Sukhdev was second on my preference. First was Stephen Zico. तो one major मेरे पूरे क्या कहते हैं पूरे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के हेल्प में आई वाज असिस्टेड विद स्टडी एंकर. मैं स्टडी एंकर से कोचिंग लेता था. तो मैंने वहां जाके ही उनके साथ बैठ के मैंने पूरी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने हिसाब से केटर टू करी. I wouldn't recommend you to follow any YouTuber blindly for preference list. काफी लोग करते हैं कि YouTube पे चला दिया और वही भर दिया. Not at all, क्योंकि कॉलेज आपका बहुत इंस्ट्रूमेंटल चीज होती है. आप ऐसे यूट्यूबर को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते. आपको हर चीज देखनी होगी ऑफ अ कॉलेज वाइल मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, और अपनी खुद की प्रेफरेंसेस भी देखनी होगी. आपको क्या चाहिए, आपको वाइब चाहिए, आपको करियर में ज्यादा वो चाहिए, आपको क्या चाहिए. हर चीज आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होगी. बट डोंट लेट योर स्कोर अफेक्ट योर प्रेफरेंस लिस्ट. आई हैव सीन मेनी पीपल मेक द मिस्टेक कि अरे मेरा स्कोर कम है, मैं थोड़ा मीडियोकर कॉलेज सबसे ऊपर डाल दूंगा तो मेरे को वो मिल जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही बना के रख लेना बिफोर द स्कोर कम्स आउट. बट डोंट लेट योर स्कोर अफेक्ट योर प्रेफरेंस लिस्ट. So for me, Kamla Nehru was my third preference actually, and उससे ऊपर था LSR and GMC. So what happened is कि अब I personally wanted to go to South Campus only. वैसे साइकोलॉजी के नॉर्थ कैंपस में बस 2 ही कॉलेज है, IIT एंड दौलत राम, एंड वो उतने अच्छे नहीं है फॉर साइकोलॉजी. सो पहली बात तो अपने कोर्स की अच्छे से रिसर्च करो कि आपका कोर्स किस कॉलेज में बेस्ट है. ये जो गूगल पे NRIF रैंकिंग एंड ऑल आती है ना, प्लीज डोंट गो बाय दैट. एंड में बात बताऊं ना, जो आपको डिग्री मिलेगी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उस पर कॉलेज का नाम लिखा भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए पहले तो आस्क योरसेल्फ कि आप कॉलेज लाइफ में करना क्या चाहते हो. डू यू जस्ट वांट एकेडमिक्स, डू यू वांट अ होलसम डेवलपमेंट, डू यू वांट टू डू मजे. कुछ लोगों को सिर्फ मजे भी करने होते हैं अंडरग्रेड में, अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है. तो पहले तो आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, एंड देन आई वुड से कि प्रेफरेंसेस बनाते हुए ना, जो आपके टॉप कॉलेजेस है ना, जिन कॉलेजेस का आप टारगेट करना चाहते हो, उन कॉलेजेस में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको रीच आउट करो. अब आप उनको रीच आउट कैसे कर सकते हो. पहली बात तो यू कैन लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, जैसे स्टडी एंकर पे हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो आपके कॉलेज का है, फाइन, लिंक्डइन पे सर्च करो. लिंक्डइन पे आप कॉलेज का नाम सर्च करोगे, आपको इतने हजारों लोग मिल जाएंगे उस कॉलेज के, उनको रीच आउट करो. इंस्टाग्राम पे सर्च करो. ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने अपने बायो में अपना कॉलेज डाल रखा होता है. अपने स्कूल के सीनियर्स को करो, तो उनसे आस्क देम कि उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है. तो मेरे साथ यही हुआ था. जब मुझे कमला नेहरू मिला ना, तो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. बट देन फिर मैंने LSR और JMC के लोगों से बात करी थी फोन पे, एंड देन आई रियलाइज कि JMC मेरे को घर से दूर पड़ेगा, और जो बाकी भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है लाइक IP एंड दौलत राम, मुझे घर से ज्यादा दूर पड़ते हैं. आई डिडंट वांट कि मैं एवरीडे ट्रैवल करूं, एंड आई डिडंट वांट टू लिव इन अ PG. ठीक है, एंड सम पीपल वांट कि उन्हें घर से दूर कॉलेज मिले क्योंकि उन्हें वो PG एंड हॉस्टल लाइफ चाहिए. तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. प्लीज अपने दोस्तों को देखकर एंड वो रैंकिंग देखकर और ये देखकर कि रैंकिंग किसकी बेटर है या फिर किसका ज्यादा, जो कहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस पढ़े. मैंने कितने स्टूडेंट्स को ये भी देखते हुए देखा है कि नहीं, मैं तो हंसराज जाऊंगा क्योंकि वहां से शाहरुख खान पढ़ा है, मेरा फेवरेट एक्टर है. तो ऐसा नहीं करना यार. जो सी कॉलेज लाइफ चाहिए तुम्हें, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरो. किसी की भी मत सुनो, अपनी खुद से रिसर्च करो. ठीक है. So the next topic that we will be talking about is mistakes or mishappenings. मतलब ऐसी कौन सी गलतियां थी जो हमने करी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, या फिर while giving our CUET exam we will be sharing about that. और ऐसी कोई mishappenings जो हमारे साथ वहाँ सेंटर पे हो गई हो या CUET देते हुए हो गई हो, we will be sharing about that so that you don't make those mistakes and you are mentally ready कि अगर आपके साथ कोई ऐसी mishappening हो तो उसे कैसे डील करना है. ओके गर्वित. या सो बेसिकली जैसे विदित ने मेंशन करा, लैंग्वेजेस को हम बहुत लुक आफ्टर कर देते हैं कि यार इंग्लिश में लिटरेचर थोड़ी पढ़नी है, ग्रामर तो आती है, इंग्लिश तो हो ही जाती है. तो अगेन बट इसका सोल्यूशन यही रहता है कि आप इंग्लिश के जितने हो सके उतने मॉक्स प्रैक्टिस करो. लाइक आप दिन में 2 मॉक्स यहाँ से लगाओगे अगर, तो आपकी इंग्लिश में आराम से 180 190 प्लस आ जाएंगे, एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग फॉर इंग्लिश. बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एग्जाम से 2-3 दिन पहले देखा कि ओके इंग्लिश भी पढ़नी है, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंग्लिश के कारण स्कोर इफेक्ट हुआ. बट लाइक उसने मेरे को इफेक्ट नहीं करा, बट आपको कर सकता है. सो बेसिकली इंग्लिश पे और बाकी लाइक हर सब्जेक्ट को इक्वली वो दो वैल्यू, बिकॉज 200 नंबर ही रहेंगे चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में. For me personally, I think during our batch there were a lot of technical issues. तो computer बंद हो गया था during my second exam. First exam के time पे I did not face any problems, but during my second exam मेरा computer 3 बार बंद हो गया था in the middle of the test. So I had to call someone. But luckily because मेरे दोस्तों के साथ ऐसे पहले हो रखा था तो मुझे पता था that अगर कुछ ऐसा होगा, so I don't need to panic. I just need to call someone for help. So I think that's one thing कि in case कोई भी technical issue होता है, don't panic, just call the person. And secondly, I think one thing is that
जब भी कोई एक क्वेश्चन नहीं आते तो वी टेंड टू गेट स्टक ऑन इट, क्यों ना, कि अच्छा ये नहीं आता, अब दूसरा भी नहीं आएगा, इसका दूसरा भी नहीं आता, ऐसे करके। तो स्पाइरल में मत जाओ, नहीं आता छोड़ दो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड डोंट थिंक अच्छा अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आगे क्या होगा, क्यों ना मेरा स्कोर गिर जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। पेपर के टाइम पे सिर्फ पेपर पे फोकस करो, आगे का मत सोचो, क्यों ना कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बस वहीं पे लिव इन, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई थिंक दैट्स इट फॉर मी। फॉर मी, मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स अपने इंग्लिश में ही खोए थे। बिकॉज आप जब 2 महीने होते सीयूईटी के, यू आर सो कॉट अप इन एवरी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कि आप इंग्लिश को देखते हो, अरे ये तो मैं कर लूंगा, इसमें क्या है, ये तो हो जाता है। बट प्लीज प्रैक्टिस मॉक्स इंग्लिश के भी ऑन टॉप ऑफ द सब्जेक्ट स्टडी। इंग्लिश का मॉक मेन थिंग था वो मेरे लिए, द मेजर मिस्टेक दैट आई मेड। उसके बाद कमिंग टू टेक्निकल इश्यूज, मेरे आई गेव द सीयूईटी टेस्ट लास्ट ईयर। उस टाइम मैंने कुछ एज सच टेक्निकल ग्लिचेस या कुछ फेस नहीं किया था, बट आई हर्ड पीपल हु फेस सच इश्यूज। तो यू डोंट हैव टू पैनिक एट दैट टाइम, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो आपका जितना टेस्ट बचा होगा वो भी आप खराब कर दोगे, राइट? तो आपको पैनिक नहीं करना, यू नीड टू कॉल समवन फॉर हेल्प। एंड इफ यूर इन द इन द मोड ऑफ गिविंग द टेस्ट और आपके कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, मतलब आपको आते नहीं है, और फिर आप उसमें यू डोंट हैव द टाइम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन व्हाइल गिविंग द टेस्ट, बहुत तेज टाइम जाता है टेस्ट देते वक्त। आपको बस अगर नहीं आता, यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन व्हेन यू हैव सॉल्व्ड द रेस्ट ऑफ द टेस्ट व्हिच यू नो। ये मेरी एडवाइस है। सो फर्स्ट आई विल लेट यू नो कि कैसे कुछ मिसहैपनिंग्स थी जो हमारे बैच के साथ हुई थी एंड जो मैंने सुनी है होती हुई। पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो ख्यातिका के साथ हुआ था, मेरा कंप्यूटर बीच बीच में बंद हो रहा था। बट थैंकफुली जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो आपको टाइमर भी रुक जाता है, तो आपके टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए पैनिक नहीं करना। दूसरी चीज जो मेरे साथ हुई थी, मेरी भी सेम विदित की तरह इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा नंबर कटे हैं। और उसके 2-3 रीजन थे। पहले मैंने भी थोड़ा इंग्लिश को थोड़ा कैजुअली लिया था, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। एंड मेरे 3 ही गलत हुए थे, लेकिन यार सीयूटी में कंपटीशन इतना ज्यादा कि अगर आप 1 या 2 भी गलत करोगे ना, आप प्रेफरेंस लिस्ट में अपनी ऐसे नीचे जाते जाओगे, क्योंकि इतने सारे लोग दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे सिर्फ 3 गलत होने पे भी मेरे इंग्लिश में आई थिंक 96 या 97 परसेंटाइल आई थी। ठीक है। तो और दूसरी चीज जो हुई थी मेरे साथ कि मेरा इंग्लिश का पेपर जो था ना, उसमें सारा मेरा जूम्ड इन था। मतलब जो सारा मेरा स्क्रीन था, स्क्रीन पे जो भी था इट वाज वेरी जूम्ड इन। तो मुझे अपना लास्ट का जो 4th ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन, वो दिख ही नहीं रहा था मुझे। और मुझे बार बार ऐसे जूम इन करके माउस से कुछ कुछ करके करना पड़ रहा था, जिससे मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था। एंड वहां पे मुझे कोई इन्विजिलेटर दिख नहीं रहा था, बिकॉज मेरा सेंटर बहुत गंदा था। तो मैं किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला पा रही थी। बट आई रियली विश उस टाइम पे मैंने अब तक कंप्यूटर बंद करके किसी को हेल्प के लिए बुला लिया होता। सो वही बोलूंगी। ऑल्सो एज यू ऑल मे नो ऑलरेडी वैसे कि अब सीयूईटी दोनों फॉर्म्स में हो रहा है, हाइब्रिड फॉर्म में हो रहा है, कि वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो रहा है, वो पेन पेपर बेस्ड भी हो रहा है। तो इस बार भी गलतियां होंगी, मैं अभी आपको पहले से ही बता रही हूँ। जब भी ऐसे कोई फॉर्मेट चेंज होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे हैपनिंग्स होती ही होती है। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज टू बी काम। ऑल्सो बहुत लोग के साथ ये भी हुआ था कि when they reach the center, वहां पे सेंटर के बाहर नोटिस लगा था कि अब कैंसिल हो गया पेपर, अब अगले दिन किसी और दिन होगा। और बहुतों के साथ ये भी हुआ था कि उन्होंने पेपर दे दिया था, लेकिन गवर्नमेंट लॉ एनटीए लॉज दैट डेटा, तो दे हैड टू गिव इट अगेन। ठीक है। तो ऐसे कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी, तो प्लीज जस्ट मेंटेन योर काम, क्योंकि ना आपकी प्रिपरेशन जैसी भी हो ना, अगर बस आप वो एक दिन काम मेंटेन कर लो और फोकस्ड होके करो ना पेपर, योर पेपर कैन गो बहुत अच्छे से। एक और गलती जो मैंने की थी, सी आई एम गोना बी वेरी रियल हियर, मेरे इन्विजिलेटर ऐसा नहीं थे, हम ऐसे चिपक चिपक के बैठे थे आसपास। तो मेरे साइड मुझे कैसे अपनी म्यूचुअल दोस्त ही मिल गई थी जो मेरे साइड बैठी थी। तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन मैंने उससे पूछ लिया था कि इसका आंसर क्या होगा। जो आंसर मैंने मार्क किया था वो सही था, बट आई ट्रस्टेड हर मोर, है मैंने उसका वाला मार्क कर दिया, जिसकी वजह से वो गलत हो गया था। तो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एल्स। पेपर खुद से ही दो, किसी से पूछना मत पेपर के टाइम पे। आपको अपॉर्चुनिटीज ऑनेस्टली मिलेंगी अगर आपका सेंटर गंदा होगा, मेरे सेंटर की तरह। तो लेकिन मत करना। एमसीक्यू का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि आपने अगर अच्छे से मेहनत करी है ना, तो आपकी जो गट फीलिंग कर रही है वही आंसर करेक्ट होगा। द फर्स्ट गट फीलिंग यू गेट, दैट आंसर विल बी करेक्ट। तो दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आई मेड। और ये कुछ मिसहैपनिंग्स हैं, तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, वहां पे डरना मत अगर कुछ भी आप लोग के साथ हो। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोना टॉक अबाउट इज, सी, अब हम जो चारों यहाँ पर बैठे हैं ना, बहुत ही डाइवर्स डीयू के बैकग्राउंड से हैं। ख्यातिका एंड गर्वित आर इन नॉर्थ कैंपस, आई एम फ्रॉम साउथ कैंपस एंड एन ऑल गर्ल्स कॉलेज, एंड विदित इज फ्रॉम ऑफ कैंपस कॉलेज, एंड शहीद सुखदेव का थोड़ा अलग से ही चलता है डीयू से। इसलिए अब हम चारों आप लोग को अपने कॉलेज के बारे में सो प्रिया, हम डाउट्स एंड में लेंगे। आई एम गोना रिपीट, डाउट्स एकदम एंड में सॉल्व करेंगे हम। आप चैट पे भी डाउट्स पूछ सकते हो और आप अनम्यूट करके भी डाउट्स पूछ सकते हो। एंड वी ओनली हैव वन टॉपिक लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे आफ्टर अराउंड 10 मिनट्स। ओके,
सो अभी इस वाले सेगमेंट में हम अपने कॉलेजेस के बारे में बताएंगे कि हमारा कॉलेज कैसे है, नॉर्थ कैंपस कैसे है, साउथ कैंपस कैसे है, ऑफ कैंपस कैसे है, गर्ल्स कॉलेज कैसे है, ठीक है। सो गर्वित स्टार्ट, ही फ्रॉम सेंट स्टीफेंस। या सो अकेडमिकली अगर आप देखने जाओगे, आप लाइक कोई भी कोर्स अगर करने आ रहे हो स्टीफंस में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक कॉलेज लाइफ की आप चिल कर रहे हो, क्लासेस कैंसिल हो रही है, सुबह कुछ काम नहीं है लाइक, बट बहुत ज्यादा ही आपके जो फैकल्टी होंगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी है, आप कितने थके हो, वो पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एजुकेशन के ऊपर और आपके लाइक करियर के ऊपर, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मोल्ड कर देता है फॉर फ्यूचर। सो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। नॉर्थ कैंपस में काफी कॉलेजेस ऐसे हैं लाइक जहाँ पे इफ यू गो टू रामजस साइड, तो वहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स को भी ज्यादा वो दिया जाता है लाइक, एंड क्लासेस यूजुअली सुनने में आता है कि डीयू में तो अटेंडेंस नहीं होती यार, डीयू में तो क्लासेस का क्या ही सीन है, बट ये सोच के डीयू में मत आना, अटेंडेंस का बहुत तगड़ा सीन है। आप डिटेन लेंगे, आपको अपने जूनियर के साथ बैठना पड़ जाएगा अगली बार पेपर देने के लिए, आपका ईयर बैक लग जाएगा। सो अटेंडेंस तो अगर आपको रेगुलर कॉलेज कर रहे हो आपको आना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट फेस्ट, हमारा तो क्लोज ही रहता है फेस्ट। सो कॉलेज लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि फेस्ट मैनेज करेंगे, मजे करेंगे, तो थोड़ा क्लोज रहता है, आपको क्राउड हैंडलिंग नहीं करने को मिलेगा। बाकी अकेडमिकली इट्स रियली गुड, एंड वैसे भी आपका बहुत होलसम डेवलपमेंट होगा। सो या नॉर्थ कैंपस इज समथिंग रियली गुड। ख्याति का भी कंटिन्यू ऑन दिस। Yeah, so like I'm just across the street from Stephens. At Hindu, I think we're more chill when it comes to academics. हम लोग के वहाँ पे of course attendance का issue पहले नहीं था. Like in my first year, we did not have like बहुत strict policy regarding attendance. But since last year, we do have a strict policy. If you have, I think, less than 40% attendance, तो आपको कुछ papers नहीं देने देते. Depends कौन से year में on कितनी attendance है again. So they have become stricter. But again, academically, when it comes to the professors, it's a mix of faculty. कुछ बहुत ही पुराने हैं, कुछ ad hocs हैं. And DU is infamous for removing ad hocs suddenly, abruptly. So that can come as a shock. So be prepared that teachers can be removed अचानक से, and there can be strikes for that. But again, it depends on the person's learning style and the teacher's teaching style. For me, it has been decently good so far when it comes to academics. And talking about societies, Hindu college में like societies are quite active. हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है like during fest season and everything. And our fest, it's called Mecca. So last year, Mecca pe we had Sunidhi Chauhan. It was a very big fest. We had like over 25,000 people. So Hindu college ka fest is very good. And generally, life is quite holistic. It depends on you कि आपको कितनी society में engage होना है. Some people, they are at like 7 societies at a time. So it completely depends on you. If you want to not be in any society, be in multiple societies, focus on academics, it gives you the space to do whatever you want. And near North Campus, there are a lot of places you can go around to explore. So it's a good college life overall. Coming to SSCBS, first of all, SSCBS के बारे में बताते हुए मैं I would like to मतलब एक caution देना चाहूंगा कि forget about every the average DU college life which you might think of कि red building, gardens, classes cancel हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमारी एक white building है रोहिणी में, it's a completely air conditioned building, and the classes don't get cancelled. Teachers take classes from 9 a.m. in the morning to 5 p.m. in the evening. Classes होती हैं। उसके बाद it's more about this college will help you land a job. This college boasts the best placements in the entire DU circuit. आपको सबसे अच्छी jobs मिलेंगी यहाँ के। तो you have to make the trade off कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको holistic development चाहिए, तो you might not be that career oriented, right? तो if you're that career oriented, this college is very good for you. उसके बाद coming to society culture, बहुत ज्यादा अच्छी societies है कॉलेज में, बहुत अच्छा exposure मिलता है societies के थ्रू। आई एम पर्सनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड कंसल्टिंग सोसाइटी, एंड मैंने बहुत ज्यादा सीखा है सोसाइटीज में आके। एंड उसके बाद कमिंग टू द फेस्ट ऑफ द कॉलेज, इतना हमारा कोई लैविश फेस्ट नहीं होता कि बहुत बड़े आर्टिस्ट आते हैं, बट इट्स वेरी फन क्योंकि कॉलेज इज वेरी स्मॉल। मतलब देयर आर टोटल 900 या 1000 पीपल इन द इंटायर कॉलेज। तो ऐसे बड़ा क्लोज नेट सा कॉलेज लगता है। एट द फेस्ट ऐसे सब यूनाइट से हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। मतलब personally what I was looking for, मेरे को सब कुछ मिला है कॉलेज में, and I'm very satisfied with SSCBS. So coming to Kamla Nehru College, it's an all girls college, ठीक है। एंड हमारा वो एकदम वो जो स्टीरियोटिपिकल गर्ल्स कॉलेज है, एकदम प्रॉपर वो रेड बिल्डिंग्स है, गार्डन्स है, चौपाल है, एम्फी थिएटर है, ऑडिटोरियम है, एवरीथिंग इज देयर। कमिंग टू अकेडमिक्स हमारे काफी डिसेंट है। हमारी भी सुबह 9 to 5:30 तक क्लासेस होती है, एंड क्लासेस कैंसिल होती हैं बट बहुत ही रेयर होती है।
लाइक इट डिपेंड्स कि आपको क्या टीचर मिल रहा है। जैसे इस साल मेरे को इस सेमेस्टर अपनी जो डिपार्टमेंट की एचओडी है, जो हेड है, वो मिली है, तो उनको मीटिंग्स एंड ऑल में जाना होता है, इसलिए कैंसिल होती है, बट वैसे मेरी कैंसिल्स नहीं होती थी। और तो जैसे कि हातिका ने बताया कि डीयू में ऐसा बहुत होता है कि एड हॉक्स मतलब होते हैं जो टेम्पररी टीचर्स होते हैं, जो टेम्पररी प्रोफेसर होते हैं, उन्हें कभी भी एकदम से दे विल डिपोर्ट, एकदम से निकाल देंगे, जिससे आपका पूरा करिकुलम इफेक्ट होता है। जैसे इस सेमेस्टर मेरे कुछ 3 टीचर्स को हटा दिया कॉलेज से एकदम से, जिससे मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ता है मेरे एकेडमिक्स पे, और असाइनमेंट किसको देना बहुत ही कियोस मच जाता है। वो ड्यू में होता रहता है। ऑल्सो स्ट्राइक्स होती है, फिर ऑब्वियसली अगर कभी सैलरी कम कर देते हैं ड्यू वाले या फिर निकाल देते तो स्ट्राइक्स होती है कॉलेज में। एंड कमिंग टू सोसाइटीज, हमारी सारी सोसाइटीज बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड हमारे कॉलेज में भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता ही रहता है। ऑल्सो सिंस इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, तो बहुत फ्रीडम रहती है, मतलब सब लड़कियां एकदम फ्री रहती है, कुछ भी पहनती है, कुछ भी करती है, कुछ जजमेंट का ऐसे नहीं होता, कुछ भी कर सकती है बेसिकली। ठीक है, तो गर्ल्स कॉलेज में वो बहुत सेफ रहता है। जो मैंने देखा है कि जैसे कि कोविड कॉलेज में वो लड़ाइयाँ और की वीडियोस आती है ना, वो सब हमारे कॉलेज में नहीं होता, सब बहुत चिल कर रहे होते हैं, इधर उधर बैठे होते हैं। एंड सम पीपल डोंट लाइक ऑल्सो गर्ल्स कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। मुझे पर्सनली गर्ल्स कॉलेज में काफी सेफ और कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, हमारा फेस्ट होता है एनुअल फेस्ट, इट इज कॉल्ड उल्लास, और पिछले साल हमारे फेस्ट में मोहम्मद इरफान आया था और एक सूफी बैंड आया था जिसका मैं नाम भूल गई। और बट इस साल हमारा जो फेस्ट होता है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, फिर सिर्फ केएमसी स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैम्पीड। स्टैम्पीड क्या होता है कि ऐसे जब भी फेस्ट होते हैं ना, तो मैक्सिमम लड़के जो क्या करते हैं वो फोर्सफुली कॉलेज के अंदर घुसने का ट्राई करते हैं, दीवार टाप कर। एंड आप लोगों ने आई थिंक मिरांडा का केस और आईटी कॉलेज का केस सुना ही होगा कि जो लड़के हैं वो गर्ल्स की हॉस्टल में भी घुस जाते हैं, उनके कपड़े वगैरह लेने लग जाते हैं, एंड लड़कियों पे हाथ उठाते हैं। तो ऐसी चीजें गर्ल्स कॉलेज में हो जाती है, बिकॉज अपेरेंटली बॉयज गेट क्रेजी ओवर एंटरिंग अ गर्ल्स कॉलेज, इसलिए टू हैव दैट सेफ्टी हमारा सिर्फ गर्ल्स एंटर अलाउड होती है, एंड बहुत ही टाइट सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारा। और अपॉर्चुनिटीज के नाम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, हमारे इंटर्नशिप फेयर होता है, डिसेंट है हमारी प्लेसमेंट्स, क्योंकि हमारे कॉलेज में मोस्टली ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज ज्यादा फेमस है। ह्यूमैनिटीज में जॉब के लिए ना आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, तो प्लेसमेंट्स बस आती रहती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है, एवरी वीक एक दो तो आ ही जाती है। हमारा प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है। तो हाँ, एंड अगेन कॉलेज में ना, किसी भी कॉलेज में जाओगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिलेंगी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आई वाज इन माय डांस सोसाइटी कॉलेज की, एंड मेरी एवरीडे 8-8 घंटे प्रैक्टिस होती थी। अब मैंने वो छोड़ दिया है, एंड अब मैं ऐसी वाली सोसाइटीज में, जैसे वुमेन डेवलपमेंट सेल, इन एक्ट्रेस एंड ऑल। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसी कॉलेज लाइफ चाहिए। अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के हैं सारे डीयू कॉलेजेस में। ओके, सो जब हमने कॉलेज का बता दिया है, नाउ द लास्ट टॉपिक विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज सीयूईटी टिप्स। अगर कोई भी ऐसी सीयूईटी टिप या हैक हमारे यहाँ पे मेंटर्स को बताना है, हम वो बताएंगे। एंड कोई रह गया हो किसी टॉपिक के बारे में बात करना, हम वो बताएंगे। उसके बाद वी विल बी एंटरटेनिंग योर डाउट्स। ठीक है, सो गर्वित, एनी सीयूईटी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव? या डेफिनेटली, देखो, सी इंग्लिश में तो ऑल यू कैन डू इज यू कैन डू मॉक्स, दिन में 2 मॉक्स यहाँ से लगा सकते हो, इट विल हार्डली टेक 90 मिनट्स का यूज। सो उसके बाद फॉर लाइक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आई विल से कि आप कम से कम 2-3 नोट्स बनाओ, एक ही चीज के 2-3 नोट्स बनाओ, उन्हीं नोट्स से स्टार्ट करके बनाओ, बिकॉज नोट्स बनाते हो ना, आपको जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो आप कभी नहीं भूलते हो। लाइक मुझे आज भी मेरे मैथ के नोट्स मिलेंगे ना, और मेरे को 2 घंटे मिलेंगे, मैं आराम से 190 के आसपास हो सकता। दैट्स हाउ नोट्स कैन हेल्प। तो आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और इंग्लिश तो कुछ भी करो, आपको मॉक्स ही करने पड़ेंगे। दैट्स इट। I think for me personally, I do agree with Garvit. मैं भी notes ही बनाती थी. That's how it helps, you know, having that clarity. Because जब आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा clarity मिलती है. And also one thing that you should keep in mind is when you're reading the question. So the thing is कि हम इतने सारे question practice कर लेते तो हमें लगता है कि question का starting का part पढ़ के कि end में क्या लिखा हमें पता है. तो हम खुद ही हमारा दिमाग predict कर देता है. Even though that might not be true. So whenever you're reading the question, टेक आउट टाइम आराम से कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो. तो ऑप्शंस माइट इवन बी जम्बल्ड कि ए की जगह पे कुछ और लिखा हो. यू माइट थिंक कि अच्छा ए के अगेंस्ट तो यही लिखा होगा बिकॉज दैट इज हाउ इट गोज क्रोनोलॉजिकली, बट दैट माइट नॉट बी ट्रू बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंड विद आवर बैच. ऑप्शंस जम्बल्ड थे. सो यू हैव टू सी क्लियरली. दैट्स वन थिंग. CBT टिप्स के रिगार्डिंग मैथ्स स्पेसिफिक अगर मैं टिप्स दूं तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है मैथ्स की करो, क्योंकि आपको लगेगा कि सिलेबस हो गया है बट यू माइट नॉट बी उतना फास्ट विद द मैथ्स दैट यू डू. फिर जब आपके टेस्ट में आएगा, आप पहले तो क्वेश्चन को देख के 10 मिनट सोचोगे, फिर आपका मैथ्स का पूरा खराब हो जाएगा, आपका पूरा मैथ्स का टेस्ट. तो मैथ्स स्पेसिफिकली आई वुड रिकमेंड कि पूरा अच्छे से करो. उसके बाद जनरल टेस्ट, राइट, फॉर SCBS. उसके लिए यू वोंट फाइंड एनीथिंग स्पेसिफिकली ऑनलाइन.
तो मैंने तो स्टडी एंकर से ही पूरी कोचिंग ली थी, मेरे को पूरी गाइडेंस मिली थी थ्रू आउट माई 12th ग्रेड। एंड आई डोंट थिंक, मतलब इफ यू कैन गो फॉर अ कोचिंग, डू डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको पूरी उनसे मेंटरशिप मिलती है। और उसके बाद कॉलेज आप लाइफ में एक बार ही जाओगे, तो you shouldn't essentially cut corners with it. उसके बाद another point that I would like to add regarding CBS, आपको लगेगा कि ऐसे CBS इज ऑफ कैंपस तो इतना अच्छा नहीं है। ऑफ कैंपस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज ये है कि जैसे आर कॉलेज इज कम्प्लीटली कट आउट फ्रॉम एवरी कैंपस ऑफ DU, राइट? तो उसके बाद हमारे कॉलेज में कभी यू माइट हैव सीन द वीडियोस ऑफ इलेक्शंस, जब कॉलेज में लोग घुस जाते हैं और मतलब पैम्पलेट्स बनाने लगते हैं, तो वो सब हमारे कॉलेज में पूरा कट आउट है। उसके बाद हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट इन द DU, क्योंकि पूरा एयर कंडीशन कॉलेज है, वी हैव कुशन्ड सीट्स इन क्लास, एंड पूरा प्रोजेक्टर्स वगैरह पे हमको क्लास ली जाती है। इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉलेज। अब मुझे विद्युत की बात सुन के याद आया कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया ही नहीं। तो कॉलेज का वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्यूट, छोटा कॉलेज है पर बहुत ही अच्छा सा है, क्यूट सा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू AC एंड ऑल, AC नहीं है कॉलेज में, एंड मोस्ट DU कॉलेजेस में AC नहीं है, ठीक है। फैन है, वो भी कभी कभी खराब हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, ठीक है। और वॉशरूम्स ओके ओके है, मतलब दे आर नॉट द बेस्ट। एंड आपको इंडियन और वेस्टर्न वॉशरूम दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो बट उतने ज्यादा क्लीन नहीं होते हैं, मतलब डिसेंट होता है। यार एक पब्लिक कॉलेज है तो ऐसा ही होगा। ऑल्सो कैंटीन इज वेरी गुड, आपको नेस्कैफे मिलेगा और कैंटीन में बहुत ही अच्छा यमी और हाइजीनिक खाना होगा। ये कमला नेहरू को मैंने बता दिया, ठीक है। और कमिंग टू टिप्स जो मैं देना चाहूंगी, सबसे पहले मैं बोलूंगी, ये डाउट्स भी आए हुए थे जूम पर, कि NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड में NCERT से बहुत ज्यादा आएगा। देखो मुझे मैथ्स और जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है उनका नहीं पता, बट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, NCERT इज योर बाइबल, बहुत अच्छे से पढ़ो। और डिडक्टेड चैप्टर्स जो है वो भी बहुत अच्छे से करके जाओ, उनसे भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड से डिडक्टेड चैप्टर्स से, बट जो CUET में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके बाद जो बॉक्सेस होते हैं NCERT के, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे। और पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। इफ आई वांट टू टेल यू ना, अभी अपने बोर्ड्स तो दे दिए, या फिर कुछ ने आई थिंक अभी बोर्ड्स भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि वो 11th में होंगे या 12th की स्टार्टिंग में होंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखो, क्योंकि MCQ में ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, आपको वो क्या कहते हैं घुमा फिरा के जैसे खाते खाने वाला क्वेश्चंस देंगे, आपको वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यार देखो, जब तुम सब्जेक्टिव पेपर देते हो ना, तब तुम एक दो डिटेल मिस भी कर दो ना तो चलता है, कि उसकी जगह तुमने कोई और पॉइंट लिख दिया, लेकिन तुम ये MCQ में नहीं कर सकते। MCQ में तो अगर वही डिटेल तुमसे पूछ ली, फिर क्या करोगे। सो एक एक लाइन अच्छे से पता होना चाहिए। कितनी बात वो ऐसे भी करते हैं कि NCERT की कोई भी रैंडम लाइन उठा के उसमें असर्शन रीजनिंग में दे देंगे उसे, ठीक है। तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक और चीज मैं बताऊं, ECA कोटा भी होता है जो मोस्ट स्टूडेंट्स को नहीं पता। मतलब कि देखो, एक स्पोर्ट्स कोटा के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि अगर तुमने स्पोर्ट्स खेला है तो तुम स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो, ठीक है। वो आगे जो फॉर्म आएगा उसमें भरना होगा, ठीक है। और फिर स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट डालने के बाद एक ट्रायल होता है, तुम्हें वो देना होता है। लेकिन ऐसे ही सेम होता है ECA कोटा, जो होता है डिबेटिंग के लिए, थिएटर के लिए, और डांसिंग के लिए, म्यूजिक के लिए। ऐसी जो तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, अगर तुम करते हो और तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स है, तो वो सर्टिफिकेट संभाल के रखो, जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा ना उसमें डाल देना, ठीक है। ECA कोटा से भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं जो ECA कोटा से कॉलेज में उनको बहुत इजीली एडमिशन मिला है, तो उसको यूज करना अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो। बट उसका बस एक यशार्थ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे जब आप CUT आपका हो जाएगा ना, तो आपका एक और फॉर्म भरना होगा फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एंड ऑल डालोगे, तो उसमें ये भरना होगा, ठीक है। तो एंड ऑल्सो डाउट्स हम अभी एंड में लेंगे वापस। तो हाँ, ये कोटाज एंड ऑल सारे देख लेना, मतलब कोटाज को फायदा उठाओ यार, कोटा का अगर तुम्हें मिल रहा है तो, ठीक है। उसके बाद होता है कि पहली बात तो एक लास्ट चीज मैं बोलूंगी कि एग्जाम डे के दिन बहुत ही काम और फोकस रहो, बहुत ही। तुम्हारी प्रिपरेशन मैटर ही नहीं करेगी। अगर तुमने उस एग्जाम डे पे तुम हाइपर हो गए, पैनिक हो गए और तुमने गलतियां कर दी ना, तो वहीं पे गेम खराब हो जाएगा। मैंने इंग्लिश में जो मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए थे, एक तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि दिख नहीं रहा था मुझे लास्ट ऑप्शन, एक मैंने उस बंदी से पूछ के गलत कर दिया था, और तीसरा मैंने ऐसे गलत किया था कि ऊपर नॉट लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस, और मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। तो जैसे ख्यातिका ने बोला, प्लीज ढंग से क्वेश्चंस पढ़ना, दैट्स ऑल। ख्यातिका, विदित और गर्भ, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? कुछ कॉलेज के बारे में कुछ ऐड करना हो या कुछ भी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? I think again, Yeah, yeah, please go ahead. या अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं बताना भूल गया था बेसिकली।
So like one of the oldest, like I can say second oldest college है. First oldest is Zakir Hussain. I don't know why. So and like you can say one of the biggest colleges. 70 एकड़ का कॉलेज है. 70 एकड़ कम नहीं होता, लाइक 10-15 मिनट कोने से दूसरे कोने में जाने लग जाते हैं. सो इट्स अ नाइस कॉलेज. सर्दियों में बहुत, लाइक तुम्हारा एडमिशन सर्दियों के टाइम पे होगा. नहीं, जुलाई, थोड़ा टाइम में सर्दियां आ जाएंगी जब, तो इट विल बी लाइक हेवन फॉर यू. इतने सारे लॉन्स हैं, स्पेशली ड्यू इज वेरी फेमस फॉर लॉन्स. लॉन्स में आराम से तुम्हें ग्रुप्स बैठे हुए दिख जाएंगे धूप सेकते हुए. And society culture, there are like 50 plus societies, so you have a lot of things to choose. Currently, like I am very much associated with Social Service League, which was founded in 1912. देखो, आधे colleges से पुरानी society है, so you can expect a lot of things from it. So काफी तुम्हारी development बहुत होगी ऐसे चीजों से जोड़ के. So definitely work really hard. इन 2 महीनों में ना बहुत कुछ achieve कर सकते हो तुम life में इन 2 महीनों के बाद. Yeah, that's it. I think for our college, again, placements for humanities, they're not there so much because humanities, as Navya said, masters karni padti hai to get placement. But for BCom, Eco honors, Maths honors, Stats honors, they're relatively better than a lot of other DU colleges. And also infrastructurally, I'll say that Hindu College is decently better than other colleges, but not as good as Vidit's college, जहाँ पे ACs है हर class में and everything. We don't have ACs. We only have ACs in certain classrooms. वो भी बच्चों ने खुद पैसे दे के लगवाए हैं. And canteen is very nice. Infrastructurally, washrooms are very good. There's a very nice amphitheater, auditorium. All those things are very good. But again, वही है कि benches uncomfortable होंगे, light चली जाएगी. All those problems, but not problems that are enough that you should think about enough कि सुबह से आप इतना अच्छा कॉलेज या DU छोड़ दो. या कॉलेजेस में जो डीयू के टॉप कॉलेजेस है, किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है कि यू नो कंसिडर इंफ्रास्ट्रक्चर कि मैं इसके बेसिस पे कॉलेज को ऊपर नीचे करूंगा. अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एन एड ऑन फॉर यू ऑल, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते. वो काफी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा. Many people end up doing that, but I wouldn't recommend anyone to let infrastructure change their college decision. Okay, so now let's come to your doubts. ठीक है. और मैं ना देखो पहले ना Zoom पे हमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डाउट्स आए हैं, तो पहले हम बोल लेते. तब तक जिनको भी डाउट्स है ना, प्लीज स्टार्ट पुटिंग देम इन योर चैट बॉक्स और रेजिंग योर हैंड. जो अनम्यूट करके इफ यू वांट टू टॉक टू एनी वन ऑफ अस, यू कैन डू दैट आल्सो. इफ यू आर कंफर्टेबल मोर इन चैटिंग, तो चैट भी कर सकते हो. तो अपने डाउट्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में अपने डालना शुरू करो, तब तक हम Zoom वाले आंसर करते हैं. ठीक है. चलो, the first doubt which we got was कि which book should we refer for humanities and are 1.5 months enough? ठीक है. सी ह्यूमैनिटीज के लिए आई वुड से कि एनसीईआरटी बस. और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए यू कैन बाय अदर बुक्स. बाहर से आप बुक्स खरीद सकते हो. एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो, ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो. बट पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. और 1.5 मंथ्स आर इनफ अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करा है ढंग से, तो इट इज इनफ. ठीक है. एंड रिगार्डिंग दैट क्या कहते हैं, जीटी और इंग्लिश के लिए अगर प्रिपरेशन की बात है, तो पर्सनली मैंने जीटी और इंग्लिश के लिए तो मैंने तो कोचिंग ली थी स्टडी एंकर से, तो मैंने तो यहीं की बुक से किया था. बट आई थिंक बहुत सारी, अगर आप Amazon पे सर्च करोगे ना लॉजिकल इंग्लिश, बहुत बुक्स मिल जाएंगी आपको. अगर तुम तीनों में से किसी और ने कोई और बुक की थी, प्लीज रिकमेंड, क्योंकि मैंने पर्सनली तो अपने कोचिंग सेंटर की बुक से किया था. बट ख्यातिका, विदित और तुमने, इफ यू गाइस नो एनी बुक्स, प्लीज रिकमेंड इंग्लिश और जीटी. इंग्लिश जीटी के लिए, इंग्लिश के लिए आई वुड से ऑनलाइन मॉक सेट खरीद लो कहीं से भी. इट्स गोना बी फाइन फॉर यू. उसके बाद जनरल टेस्ट के लिए आई डिडंट परचेज एनी बुक. मेरा पूरा जनरल टेस्ट वाज कवर्ड फ्रॉम माय कोचिंग. For me, English के लिए I did not take anything, but generally I think because I keep up with newspapers and things, तो उसके लिए मेरा GT भी sort हो गया था, English भी sort हो गया था with that. And GT के लिए I did not prepare anything per se, but I would watch random YouTube पे वो जो mocks होते हैं, and like 1 hour 60 questions in 1 hour, all those things I watched a lot for GT and English. Garvit, and also guys keep Personally, sending in your GT मेरे queries on पास, chat. हाँ, Sorry, हाँ Garvit, please. yeah, personally, no worries. Personally मेरे पास GT था नहीं, तो I don't know much about it. और इंग्लिश के लिए मैंने randomly वही, as Adit said, Amazon से कुछ भी मंगवा लो यार, क्वेश्चंस ही रहते हैं.
कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड ऑनेस्टली बताओ ना, सब बुक्स में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं, सब एक दूसरे का कॉपी करके ही बनाते हैं, ठीक है? तो इतना कोई डिफरेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, और बहुत यूट्यूब चैनल्स भी अच्छा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी गॉट वाज कि वेट, how much effort is needed to get into Delhi North campus? Hatika और Garvit, would you like to take this, guys? Again, मैं एक चीज से पहले, तुम दोनों से पहले मैं एक चीज बता दूं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। जैसे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के ऐसा कुछ भी नहीं होता, साउथ कैंपस की भी कुछ कॉलेज की कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से भी ज्यादा अच्छी जाती है। तो ये जो नोशन बना रखा है कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस से बेटर है, दैट इज नॉट ट्रू। यस, कैंपस लाइफ बेटर है क्योंकि नॉर्थ कैंपस में सारे कॉलेज आमने सामने है, लेकिन ऐसा कट ऑफ के में कुछ बेटर नहीं है। तो तुम दोनों भी बता दो गाइस, सिंस यू गाइस आर फ्रॉम नॉर्थ कैंपस, कितने एफर्ट्स डाले तुमने? फॉर नॉर्थ कैंपस आई थिंक इट अगेन डिपेंड्स कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पॉल साइंस ऑनर्स का कट ऑफ विल बी लाइक 790 800 एज कम्पेयर टू हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स का 600 समथिंग जाएगा। इट डिपेंड्स। नॉर्थ कैंपस में भी देयर आर वेराइटी ऑफ कॉलेजेस विच वन लाइक दौलत राम का कट ऑफ विल बी लोअर देन स्टीफंस या हिंदू का। So it completely depends what college you targeting, which course you targeting. या अगेन लाइक एज क्या थे सेट, कोर्स बहुत मैटर करता है। आप इको ऑनर्स की कट ऑफ देखने जाओगे अगर स्टीफंस की, वो बहुत हाई रहेगी अगेन, बट देयर आर फ्यू कोर्सेस जैसे संस्कृत ऑनर्स भी है हमारे कॉलेज में, सो उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगी। तो बट आई से हार्डवर्क कितना रिक्वायर्ड है, तो मान के चलो अगर मेरे पास 2 महीने हैं तो तुम्हें कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम। एक भी दिन छूटा तो इट मीन्स आप बहुत पीछे छूट रहे हो रेस में। आप ये छोड़ो, जितना एक दिन आप कम पढ़ रहे हो उतना आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आप नीचे गिरते जा रहे हो। सो बी वेरी कंसिस्टेंट विद व्हाटएवर यू आर। एडिंग टू व्हाट गर्वित सेड, हाँ, ये 2 महीने प्लीज जितना पढ़ सकते हो पढ़ना। अभी आपके फ्रेंड्स बाहर घूम रहे होंगे, जब आपके बोर्ड्स खत्म हुए, बट बोर्ड्स खत्म होने से कुछ नहीं होता। प्लीज स्टडी फॉर सीयूईटी आफ्टर, राइट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। और उसके बाद रिगार्डिंग द एफर्ट्स रिक्वायर्ड, देयर इज नो सेड आंसर फॉर दिस। बहुत मतलब आर्बिट्रेरी रहता है। किसी ने बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करी होती है कि वो एक हफ्ता में सीयूईटी पढ़ के भी सीयूईटी निकाल देता है, बट कुछ लोग होते हैं जो बोर्ड्स के लिए ही बहुत पढ़े, सीयूईटी के लिए भी बहुत पढ़े, उसके बाद भी नहीं निकला। तो इसके लिए देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। प्लीज जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, बिकॉज आप कॉलेज एक बार ही जाते हो लाइफ में, एंड प्लीज ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस, क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे आप बहुत नीचे चले जाओगे विद इन द प्रेफरेंस लिस्ट। सो पुट इन एज मच एफर्ट्स एज यू कैन। Also, up only 10 minutes are left in this meeting because हमारा 6 PM एक लॉ का वेबिनार भी है, so let's just quickly सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। एक आया है, in 1 month will I be able to secure BBA FIA seat and how can I maintain consistency? ये वैसे आई थिंक विदित ने आंसर कर दिया है कि पढ़ना है और it depends on you. Is it so, Vidit? Do you want to add something to this? क्योंकि Vidit, you know better about this. या मतलब इट कंप्लीटली डिपेंड्स। मुझे पता नहीं है तुमने मैथ्स कितनी कर रखी है, क्योंकि मैथ्स आप एक महीने में पूरी नहीं कर सकते फॉर यू नो scoring 200 in CUET unless you're a very genius guy. But maths का syllabus बहुत extensive है, वो नहीं हो पाएगा एक महीने में। It is very relative आपने कितनी पढ़ाई already कर चुके हो, but if you put in the efforts एक महीने में भी you can. फिर है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर डोमेन्स? आई फील इट इज इनफ। पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के लिए और बुक्स चूज करो। और अब मैं ना पहले ये चैट वाले आंसर करना शुरू करते हैं फटाफट। ऑल्सो गाइज, पहले मैं आंसर करने से पहले हमने ये गूगल फॉर्म डाला है। इफ एनी ऑफ यू वांट एक 1-on-1 मेंटरशिप सेशन विद एनी, हम में से किसी के साथ भी, सो प्लीज फिल इन दिस गूगल फॉर्म। ठीक है, ये अभी डाल दिया एक स्टडी, इसको पिन कर सकते हैं, ये हम पिन कर रहे हैं इस गूगल फॉर्म को। यू कैन फिल दिस इफ यू वांट 1-on-1 मेंटरशिप सेशन। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस फटाफट। हाँ, ऑल गर्ल्स कॉलेज आर सेफ इन ड्यू लाइक कमला नेहरू कॉलेज? यस, दे आर वेरी सेफ यार। देखो, तो डिपेंड भी करता है, कमला नेहरू की तो बहुत ज्यादा अच्छी सेफ्टी और प्रोटेक्शन है, लेकिन जैसे आईपी कॉलेज में जब फेस्ट हुआ था, दे हैड नो बॉडीगार्ड, नथिंग, इसलिए उनके कॉलेज में ऐसा स्टैम्पीड हो गया था। लेकिन वैसे मोस्टली कॉलेजेस में बहुत अच्छी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी होती है, बस फेस्ट के टाइम पे थोड़ा झंझट हो सकता है। When did you all start your preparation for CUET? See, it is very subjective, हम सारे बता ही चुके हैं। हम लोग बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा था, एंड देन बोर्ड्स खत्म होती CUET के लिए पढ़ाई करी थी, रुके नहीं, कोई भी रुका नहीं यहाँ पे। If I opt for 6 subjects, then the aggregate score will be shown by 800 marks, so it will be 1200. See, it will depend on your eligibility criteria. वैसे most जो colleges होते हैं वो 800 का लेते हैं, but जैसे कि शहीद सुखदेव है वो 650 का लेता है, so that will totally depend on your
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1200 तो किसी का भी नहीं है, मैक्सिमम 800 ही है, ठीक है। उसके बाद है कैन MUN सर्टिफिकेट्स बी इंक्लूडेड फॉर EC, यस दे कैन बी इंक्लूडेड डिबेटिंग सोसाइटी, बट मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आप EC कोटा से जाओगे तो आपको सोसाइटीज में पार्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने डिबेटिंग और MUN पे डाला तो आपको डिबेटिंग सोसाइटी में पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, विच आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सिंस आई थिंक यू लव दैट एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। Can you explain the process of CSAS and the general process from the day the actual CUET ends up to the final admission into DU? See, वो वैसे one more thing वैसे तो मैं आपको पहले बता दूं, we have a YouTube channel also and an Instagram channel also, CUET by The Study Anchor. I would really appreciate if you all can follow and subscribe to that channel, क्योंकि हम actually में उसमें बहुत अच्छा content डालते हैं, हम ये सारे updates देते हैं, हम सारी mistakes बताते हैं, हम सारे ये tips देते हैं, ठीक है। ऐसी अभी पूरा प्रोसेस समझाने को इतना टाइम नहीं है, बट वी विल श्योरली मेक अ वीडियो अबाउट दिस। और CUET होने के बाद एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है, DU का स्पेसिफिकली, उसके लिए वी कैन मेक अ वीडियो एंड प्लीज गो एंड वॉच इट, जब हम बनाएंगे। पिछले साल की बनी हुई है ऑलरेडी, एक स्टडी एंकर के चैनल पे। व्हाट विल बी द स्कोरिंग? आर्यन, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अच्छा, स्कोरिंग आई थिंक ये होता है कि एक सही क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन का आपका -1 हो जाता है, मतलब यू लूज 6 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है CUET में। कैन यू पुट सब्जेक्ट्स दैट यू हैवंट स्टडीड इन +2? नो, यू कैन नॉट पुट दो सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े, आप सिर्फ वही वाले चूज कर सकते हो। If DU eligibility for my course 1 language and 3 domains and I give 4 domains, will best of 4? No, आप 4 दे दो, बेस्ट ऑफ 3 ही लेंगे जो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आपको डोमेन ज्यादा देना दे सकते हो, बट दे विल टेक बेस्ट ऑफ 3 ओनली। आरिहम, तो ये तो स्वयं ने आप लोगों को सजेशन दिया गाइस। फिर फॉर बिजनेस स्टडीज NCERT इज इनफ, ये विदित प्लीज टेक अप दिस, मतलब हमारे पास बिजनेस था नहीं तो I feel NCERT is enough for business studies. मैंने सुभाष दे करके एक वो होती है, संदीप कर या सुभाष दे थी, उनमें से वो एक सप्लीमेंट बुक होती है, मैंने पूरी BST उससे पढ़ी थी, तो मेरे लिए तो दैट वाज मोर देन इनफ। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लॉस्ट द क्वेश्चन गाइस, कौन से क्वेश्चन को थे हम, प्लीज को बता दो। हाँ, हाउ टू रिवाइज फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स, लाइक शुड वी रीड NCERT फुली अगेन? सी, अगर आप NCERT भी ऊपर से देख लो और आपने कोई नोट्स बनाया वो पढ़ लो और MCQs प्रैक्टिस करो उन चैप्टर्स की। Could you give light on what to do for law courses in CUET? See, I have no idea about law. इसके लिए I would say कि एक बार आप प्लीज, अभी हमारा लॉ का भी सेमिनार हो रहा है 6 PM पे, वो अटेंड कर लेना। What are the reference textbooks for applied maths? Vidit और also one more thing guys, ये 558 559 पे मीटिंग एंड हो जाएगी, सो यहाँ पर हम स्टडी एंकर के थ्रू वी हैव आल्सो पुट अ नंबर, वी आर पुटिंग अ नंबर, आप उस पे कॉल देके भी हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर द नंबर्स, इस पे यू कैन कॉल अस एंड आस्क ये जो बच्चे के डाउट्स है, हम जितने आंसर हो रहे हैं तो करने का ट्राई कर रहे हैं। मैथ्स का गाइस बता दो, कोई है विदित एंड करवित, प्लीज कोई रेफरेंस बुक मैथ्स के रिलेटेड मैथ्स के लिए कोई? मैथ्स के रिलेटेड आई थिंक हमने काफी बता ही दिया, उसके बाद प्रैक्टिस ही है मैथ्स में, और कुछ शॉर्टकट नहीं है देयर टू मैथमेटिक्स। पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, एंड डिलीटेड सिलेबस भी पूरा पढ़ना होगा, एंड उसके बाद MCQs करने होंगे फॉर अटेनिंग दैट स्पीड इन द फाइनल एग्जाम। तो अच्छे से मैथ्स पढ़ते रहो, मैथ्स से टच मत लूज करना अपना। बोर्ड्स खत्म हुए तो अब प्लीज स्टार्ट स्टडिंग मैथ्स वापस, नहीं तो फिर once you start forgetting maths फिर बहुत मुश्किल होता है उस लूप में वापस लाना खुद को। Okay guys, so we are now ending the session. I'm sorry, I know कुछ questions बच गए हैं, but we have provided the number. आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे डाउट्स पूछ लो, and also please fill in that Google form if you want any mentorship session with any of us. Also हमारे पास आगे फ्यूचर में ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑनलाइन बुक स्टडी एंकर के पास भी होंगी, so you can access those also. And please do subscribe and follow our YouTube and Instagram channel. It is The Study Anchor and CUET by The Study Anchor. Thank you so much guys for joining, and please give us a call if you want to ask any more doubts. Thank you guys, bye bye.